Back to Mardarshan by ITS. So guys, first of all, I would like to congratulate each and everyone for being shortlisted for IOCL interviews. Guys, आप सभी लोगों को टीम मार्गदर्शन दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करती है आप लोगों के आईओसीएल में शॉर्टलिस्टिंग होने का, इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने का। बट मैं ये चाहता हूं, हमारी टीम ये चाहती कि आप लोग यहाँ से शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं, आप लोग सिलेक्शन लेकर निकले। तो इस सिलेक्शन के लिए आप लोग को ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क में आप लोग सभी मार्गदर्शन पे बैठे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग गाइस फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं मार्गदर्शन के साथ में। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप डिस्कशन की ओर। सो गाइस आज का जो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आईआईटी, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट। द टॉपिक फॉर टुडेस ग्रुप डिस्कशन इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ आईआईटी, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट। The group discussion will be of 20 minutes where you have to think 3 minutes for thinking and remaining 20 minutes will be there. Remaining 17 minutes you have to group discuss. Okay. And last 1 minute will be the conclusion part. Start. So good evening everyone. We can start. Let it be, bro. Yeah, sure. Yes. Sure. Take your time. Can we start now? Yes, just confirm. आप लोग देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। सब लोग रेडी हो गए? सबके पॉइंट्स रेडी है? Yes, we are ready. You can start. Guys, मैं आपको चलिए स्टार्ट करिए। Good evening everyone. We are discussing on the impact of the number of IIT increase on the overall Indian scenario or the overall nation. I think first of all, the
as the number of IITs increase, the government, it is a very good thing, because we provide the more students to achieve the good opportunities like the engineering fields and many other fields also. Like IIT is not include to the IIT, they are also conclude the many other programs. Also, one point I want to add is that the number of IITs increment is directly proportional to the research area increment. Overall, the Indian research scenario is increment to directly proportional to IITs, because the IITs provide the better research than other institutes. India has the many institutes for the research, but the main contributions are come from the IITs. So I think the number of IITs increment is a very good thing for the Actually, Sonia, research. I'm disagree with your point. If we increase the number of IITs as day by day, then the education quality will be decreased. Rather than the increasing the number of the IITs, we need to focus on the, जैसे कि अपना फोकस करना चाहिए कि जैसे कॉलेज के अंदर फैसिलिटी एक्स्ट्रा इंक्रीज की जाए, जो अपना अभी कहीं देखेगा जैसे कि आईआईटी मद्रास आईआईटी जो कुछ सिर्फ 7 आईआईटीज है, उन्हीं के अंदर फैसिलिटी जो रिसर्च फैसिलिटी वो प्रमोट हो रही है, या फिर उन पे पेमेंट जैसे जो होती है ना, पेड रिसर्च होती है, उसके बजाय हमें फोकस करना चाहिए कि जैसे जो भी बाकी जो आईआईटी बन चुकी है उसको ना एक्सटेंड करने के बजाय उसके एजुकेशन पे इम्प्रूव किया जाए। जो हमें अपना एम होना चाहिए कि ग्रेजुएट विद मोर एफिशिएंट क्वालिटी, ना कि नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स बढ़ाना नहीं है। हमें जो ग्रेजुएट जो हो रहे बंदे उनके अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप करना है। Yes, I think number of with elevating this IITs, point, I want to say that now the competition level has decreased in IITs as the number of IITs has increased, but this has lead to the less eligible students to get admission in IIT. The more number of students are able to get more opportunities, but the level of education has been reduced in IIT because of it. But a pro that we can see because of the increase in number of IIT, we can see the student used to suicide because of it. We can see in the lot of cases in quotas and such that a lot of students are suiciding because they are not able to get good college admission and such. Now they are able to get better colleges. IITs is, see, when we are when we get admission from in IIT, now nobody started asking which IIT you have studied from, which IIT you studied from. They just know that you have studied from IIT. That only matters to them. So now many students are able to get admission from IIT. Now they are able to get world level education from the IITs itself, and research, as my friend has said, a lot of research areas has increased in India itself because of it. I think I want to add one point is there. He said like I increase the number of IIT, they decrease the quality of education. But I think IIT defines its standard of education. So also according to that, they can involve, they can include their some study standard in their co-curriculum and other program. They what was they conduct and what will be they conduct. So increase the number of IITs, increase basically the number of seats for the student, and there is a competition is always there. So basically the people, the students are working so hard and they are also eligible, but some due to the some if they're going to give the exam of a JEE advanced, JEE mains, but due to the some point they lack in the exam, or due to there something happen in their at that time, so they are not able to crack that exam. But if number of IITs again increase, then they will be get into IITs and they can pursue their future in engineering. So they cannot drop. राकेश, मैं तुम्हारे पॉइंट से डिसएग्री करता हूँ कि अगर हम नंबर ऑफ आईआईटीज बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज कर जाएंगे, बट उसका एक ऐसा है कि जैसे कि बजट फिक्स होता है, उस बजट को अगर तुम नंबर ऑफ आईआईटीज इंक्रीज करने में लगाओ, या फिर तुम उससे जो एग्जिस्टिंग आईआईटीज है उनमें कुछ अच्छा डेवलप करने के लिए जो करिकुलम एक्टिविटीज होती है साथ साथ में, उसमें ऐसा है कि जो बाकी कुछ मैक्सिमम जो 23 आईआईटीज है उनमें 10 आईआईटीज में फोकस होता है जो प्रॉपर जो स्टैंडर्ड वाली जो स्टडी को एजुकेशन उसको फॉलो करना। बाद में जो लोअर आईआईटीज में जाओगे तो मेनली क्या होता है, ऐसे कुछ आईआईटीज में प्राइवेट कॉलेज से भी वो डिग्रेड हो रखी है एजुकेशन, तो हमें मेनली फोकस करना चाहिए जो एग्जिस्टिंग आईआईटीज है उनके एजुकेशन इंप्रूवमेंट करना लगे। जो फैसिलिटी जो इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन की बात करें तो जो अपने क्लासरूम में जो फैसिलिटी अवेलेबल होती है वो कम होती है, जो अपना जो प्रोफेसर जो अपने पढ़ा रहे होते हैं वहाँ पे उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज करते हैं तो फिर वो जो बेसिक नॉलेज होता है वो कहीं ना कहीं लेक कर रहा होता है। अब जैसे नॉर्मल बात करें, वो जो सुसाइड का रेट हो रहा है क्योंकि जो नंबर ऑफ आईआईटीज इंक्रीज करे, उसका रीजन मुझे लगता है क्योंकि जब जो बच्चा एलिजिबल नहीं है उसको आईआईटी मिल जा रही है, सडनली उसके ऊपर प्रेशर बन जा रहा है। जब उसके प्रेशर बनता है तो वो उसको झेल नहीं पाता, वो सुसाइड की तरफ जाता है।
मतलब मैं कि जो just like quality of ये गवर्नमेंट education का No, अच्छा no, no. इनिशिएटिव I है think you have got my point wrong, Surendra. That what I wanted to say in that number of suicides are decreasing because of it. That some people who are not able to get admission in IITs before now able to get admission in IITs now. हाँ yes And yes I one am thing also that agree. you have said, that regarding that budget is confirmed. That I wanted to mention that every professor is doing their own research. Like IIT Mandi professor is doing their own research, IIT Hyderabad professor is doing their own research, IIT BHU professor is doing their own research, IIT Madras professor is doing their own research. So their funding is coming from the research as well. So it is not like they are not getting funded or their students will not get funded because of it. They will also get funded from their research as well. So I'm they will have completely money मतलब and ये they will गवर्नमेंट get का developed as well. मुझे I'm लगता है completely my I give the कोई one अच्छा example. इनिशिएटिव है नंबर ऑफ आईआईटीज को बढ़ाना, क्योंकि जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वी नीड प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटीज, बट प्रोवाइडेड इसकी जो चार्म है आईआईटी की वो खोनी चाहिए, क्वालिटी का एजुकेशन मेंटेन रहनी चाहिए। ये मेरा और Yes, yes. साथ साथ ये भी IIT कहना है कि maintain their कोई भी आई quality. जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है, जो ग्लोबल रैंकिंग निकलती है आईआईटीज वगैरह की, तो ओनली सम आईआईटीज एबल टू मेक थ्रू इट, लाइक आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, ओनली ऑल आईआईटी एबल टू मेक इट, नॉट ऑल। आई में कहने का मतलब ये कि 7 आई अभी हमारे पास टोटल 21 या 22 आईआईटी टोटल आई थिंक, उसमें से 7 जो है 7 और प्लस आईआईटी बैंगलोर, इनमें से कुछ जो है रैंकिंग में अपना नाम अपना क्वालिटी हैम्पर हो रहा है, क्योंकि हमें भी ध्यान देना होगा, R&D पे भी वर्क करना पड़ेगा। जो डिफरेंट आईआईटीज हैं वहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर भी काम करना चाहिए, नंबर ऑफ आईआईटीज हमें बढ़नी चाहिए। और एक और प्रॉब्लम इससे ये भी है कि जो ब्रेन ड्रेन होता है आईआईटीज वगैरह जितने भी, जैसे गूगल पीछे वगैरह हो गए, वो इंडिया की सोर्सेज वगैरह का यूज करके अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, पर जब मदरलैंड को सर्व करने की बात आती है तो वहां जाते हैं। तो हमें मतलब इस तरह को रोकना होगा, ये गलत बात नहीं है, पर हमें ऐसा कुछ नहीं इन्वॉल्वमेंट ब्रो चाहिए ब्रो कि ये यार ये वो you are diverting the topic bro. You are diverting the topic. Yeah. You are diverting the I topic. don't think we are हमारा- going away from the topic as well. हाँ इंडिया में जो अभी देखा जाए आईआईटी बढ़ाने की जो बात ये हो रही है, पहले हम लोग देखा जाए कि अभी जो एग्जाम जो स्टूडेंट दे रहे हैं, जो कॉम्पीट कर रहे हैं आईआईटी के लिए, वो नंबर स्टूडेंट्स जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है डे बाय डे। तो हमें आईआईटी बढ़ाने से अच्छा जो अभी आईआईटीज हैं हमें उनके क्वालिटी पे ज्यादा इम्प्रूवमेंट फोकस करना चाहिए। अगर क्वालिटी इम्प्रूव होगा अगर, तो वहां से जो स्टूडेंट्स निकलेंगे जो रिसर्च या फिर जिस फील्ड में कुछ अच्छा करेंगे, तो उससे लोग ज्यादा मोटिवेट होंगे। कभी पहले का जो समय था उस टाइम बीटेक का आईआईटी का बहुत ज्यादा क्रेज था, बट इन द रिसेंट टाइम जो कंपटीशन है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कम हो गए हैं। वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो आईआईटी से निकल रहे हैं, जो आईआईटी अच्छे नहीं है, वहां से जो स्टूडेंट हैं वो निकल के कुछ अच्छा उतना नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट जो टॉप ऑफ आईआईटी से, जो टॉप की आईआईटीज हैं उनके स्टूडेंट्स जो निकल रहे हैं उनको छोड़ के। तो इससे हमें जो पूरा जो आईआईटी अच्छे नहीं है, मतलब लोअर आईआईटी हैं, उनके क्वालिटी पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि वहां से भी जो लोग निकले वो भी अच्छा कर सके। और सभी आईआईटी जो ऐसे जो लिस्ट में नाम आते हैं कि टॉप इंडिया की जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें सिर्फ कुछ ही आईआईटीज का नाम आता है। तो हम लोग का फोकस ऐसा होना चाहिए कि जितने भी आईआईटी हैं उस लिस्ट में सबका नाम है, तो हमें ज्यादा उसके क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। I'm completely मैं agree तुम्हारे with you, पॉइंट से but one I want to सिद्धांत add. या Yes, continue. I want to add one point more. Like overall, we are saying that the number of IIT decrease the quality of the education. They did. Someone said that they didn't have any basic infrastructure like this. But we are seeing it the present time. But in the future or long time goal, it will be surely with the IIT Bangalore compared to the IIT Mandi also touches the IIT Mandi. IIT Mandi touches the IIT Bangalore meter. Obviously, it took the time. But IITs have a different curve. The government provides the initial fund, but for the research, please complete me my point. Let me complete my point. Then we can discuss. Sure. So in the IITs, like I have also joined. I am from the IITs, masters from the IITs. I have seen there the professors write the projects for the different companies, private firms, government firms, and they took the projects and
research facilities from the different sources. They are not taking, the institute is not providing the any facility for the researchers. So overall, the research facility overall depend on the professors. The professors are do very hard work, and the students also doing the very hard work. That's the reason the IITs have the very good research culture. If you have, if you compare to the research culture of the IITs, there are the many great work of the IIT researchers, IIT professors. Like one of the example is the P. Balram. If anyone knows the P. Balram, Dr. P. Balram, he is Bro, the Padma Bhushan and the Padma Shri. Yeah. sorry I'm for disturb. conclude on the research Try topic. to try to just convey short point, not to elaborate them. Yeah. कि I want to disagree with सिद्धांत बजट पॉइंट कि इफ अगर हम नंबर ऑफ आईआईटीज बढ़ा देंगे तो बजट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैंने अभी जैसे रिसेंटली आईआईटी मद्रास में देखा कि जब बजट ऐसा है कि जो वहाँ लैब जो है वो उसके जो एपरेटस से खराब हो रखे हैं, तो बट वो मेनली जो बजट नहीं आ रहा, तो मेनली जो उनसे पूछा जा रहा है रीजन बजट क्यों नहीं आ रहा, तो बोल रहे हैं कि जो अदर आईआईटीज है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने में लग जा रहा है। अगर वहीं अगर हम नई आईआईटीज को इंक्रीज करके हो जाए, जो पहले से आईआईटीज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, जो फैसिलिटीज अवेलेबल है उनमें अच्छी जो एपरेटस है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले है वो डेवलप करे, जो वो पैसा वहां लगा रहे उसके बजाय उसके अंदर इंक्रीज करने में लगाना चाहिए हमें। I think I am So you completely wanted to say disagree with you. IIT Madras didn't have the money, but IIT Hyderabad has the money to have their machines fixed, right? So that is the point to IIT Madras for not fixing their apparatus like that. This is not the I'm way we completely can say disagree. that IIT Madras doesn't have that money. Okay, every institute has given their own budget for their own facilities. We can't be like that. If they are not given money for their own budget, they have been distributed their own budgets. Research fund is coming. Research fund is given to every institute. They have to manage. They have to see how, like every organization works like that as well. They have a particular budget. Revenue is there. They need to work on that revenue only. That how they get managed, how they can see that their working everyday working is not going to be affected from that. आई ऑल्सो एड वन मोर पॉइंट कि नंबर ऑफ आईआईटीज Yes. इंक्रीज करने से जो कुछ सर्टेन ब्रांचेज है उनमें बेनिफिशियल होता है, कुछ सर्टेन ब्रांच में डिक्रीमेंट भी होता है। जैसे हम नॉर्मली बात करें, जैसे आईटी सेक्टर्स की बात करें, नंबर ऑफ आईआईटीज होगी तो मतलब कैसा है कि बच्चों को सीएस जो आईआईटी सेक्टर में जाने का अच्छी कॉलेज से करने का मौका मिलेगा, तो ऐसा है कि उसमें बेनिफिशियल होगा। बट अदर जैसे कि ब्रांच की बात करूँ कि केमिकल है, थोड़ा सा जैसे लो जो पॉलीमर हो गई है उनमें डिग्रेड हो रहा है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया, जैसे मैंने बीटेक भी किया आईआईटी से, तो वहाँ से भी मैंने एक्सपीरियंस किया, धीरे धीरे वहाँ पे डिग्रेड हो रही है, ना कि उस पर इंप्रूव हो रहा है। I think we can see now in the long term goal it is going to affect जो our आईआईटीज IIT. वगैरह है उसमें जैसे नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह की जो डिमांड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डाटा इससे रिलेटेड जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है वो सब न्यू कोर्सेज करिकुलम वगैरह ऐड करे आईआईटीज वगैरह एज पर डिमांड ऑफ द अपकमिंग टेक्नोलॉजी वगैरह, इस पे भी वर्क करे It तो is अच्छा already रहेगा। added, bro. It is already added in the IIT courses. We are studied from the IIT. We can see that it is very easy. One of my friend Just has I want to already said remind. that we are not seeing for the current. We should not see that for the current scenario only. We should see for the future goal as well. Future Future, industry, these IITs obviously. can emerge as well and could compete with the top grade IITs as well. They can go for the world level. If we go to the world level, प्रेजेंट अच्छा the करेंगे तभी overall तो फ्यूचर के IITs लिए। have the ranking less than the 500. All the IITs have the QS ranking less than the 500. It is a very good thing, because if you compare to top world universities, approximately the QS ranking 2000 universities are participating in the QS ranking form, but all the IITs nearby all are lies in the range of the 500. That's a very good thing. Like I we have think the we have number of IITs. fair discussion right now. We need to think about our conclusion. Let So- us conclude that I think IITs, with the increasing number of IITs, students are given more opportunities in the education sector, and research areas has also increased because of the number of increase in IITs. But now less eligible students are given opportunities in IITs, so it is thought that a little difference in education level has been reduced. These are the pros, and the pros that research level of India has increased because of it. In the future level, that IITs can grow and can compete with the world level as well for the future IITs. I completely agree with him. And Yes. want to add anybody some wanted points? to add? गाइस आई नीड सबका, मुझे लास्ट में कंक्लूजन चाहिए, सबका चाहिए। ओके
सबका वैसे पूछा नहीं जाता, बट मुझे चाहिए। ओके, बताइए, लेट्स सी। यस विजय सिंह। मैं सर ये इसमें सर इसके पॉजिटिव भी इफेक्ट है, नेगेटिव भी इफेक्ट है आईटीज के। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है कि प्रीमियम इंस्टीट्यूट हो आईटी की तरह। उससे क्या होगा, इजीली इनरोल कर पाएंगे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में। पर ये प्रोवाइडेड कि क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन रहनी चाहिए सराउंडिंग। और सर और आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है, और जो भी रिसोर्सेज वगैरह का अच्छे से यूटिलाइज करना है हमें। मुझे मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि हमारा जो ग्रुप है उसका प्रॉपर फेयर डिस्कशन हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हमें एक कंक्लूजन पे निकले हैं कि नंबर ऑफ आईआईटी इंक्रीजिंग फेवर हमें है कि इंक्रीज नंबर ऑफ आईआईटीज इंक्रीज करने से होता है कि नंबर ऑफ पीपल्स को मौका, जो नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स को चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। थोड़ा सा ऐसा है कि जो लेवल ऑफ एजुकेशन लाइटली डिक्रीज होगा, क्योंकि जब जो लेस एलिजिबल पीपल है उनको भी वहाँ मौका मिलेगा। थोड़ा सा उनको ऐसा कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। तो आई थिंक द कि नंबर ऑफ आईआईटीज इंक्रीजिंग इज good option, but somewhere we need to think about all the IITs कि उनमें कुछ बजट का कंस्ट्रेंट थोड़ा ऐसा हल्का अपने को जीडीपी का एजुकेशन, जो जीडीपी का रेट है वो थोड़ा सा एजुकेशन में ज्यादा खर्चना चाहिए। That all from my side. I just corrected few points from my friends. Like first of all, I think the number of IITs increment is the beneficial for the long-term goal for the India. As the India population increases, so we can't say that the less people is going to the IITs. Maybe it will be the 0.1%, but the 99.9% of students are brilliant, very brilliant. Obviously, they are getting the IITs. Obviously, the competition and number of students in the examinations are increased. So we can't say that the less qualified people are going to the IITs. And obviously, it is not for the qualification or not the talent. It is the passion and everything, determination. In the IIT admission, it is not an easy task because it needs the passion and everything. Overall, the conclusion is that the IIT increment is a beneficial for the long-term goals in the research field, in the education field. For the short-term goals, it will be the like the best. It will be like the shortage of the money. But for the long-term goals, overall the goals, the IIT number of IIT increment is the beneficial for the whole country. That's from my side. I want to conclude that like increasing the number of IT is better because currently we are saying in current scenario we are thinking like there is like a quality of education decrease, but if by chance or by some people's like some politicians are working like mostly focusing on the education system, so they are changing the policies. So sometimes after it can be happen that like IIT future of IIT is very good, and not eligible student also get opportunity, but by working hard they can be bit like who qualify the JEE exam, but they can build they can like वो compete कर सकते हैं कि जिन्होंने अच्छे भी मार्क्स लाए होंगे JEE एग्जाम में जो अच्छे IIT लेने के लिए, बट वो हार्ड वर्क करेंगे तो वो भी उनको compete कर सकते हैं आप 4th ईयर में आके। तो मैं ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि लाइक इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आईटी इज गुड। या विजय सर वो सर घर में कोई आ गया था ना, तो मेरे को जाना पड़ा था, इसलिए मैं बोल नहीं पाया, इसलिए दोबारा बोलना चाहूँगा सर। हाँ बोलिए सर जैसे कि ये अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि नंबर ऑफ आईटीज बढ़ाना। क्यों? जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट हमें आईटी जैसे चाहिए जिसमें बच्चे इनरोल कर सके डिमांड के अकॉर्डिंग। पर ये प्रोवाइडेड कि जो चार्म है आईटी का वो खोना नहीं चाहिए कहीं भी, क्योंकि मतलब जो क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। क्योंकि क्या है, जो आईआईटीज ओल्ड आईआईटीज वगैरह हैं वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अच्छा परफॉर्मेंस हो रही है, साथ साथ उसी क्वालिटी को मैचअप कर सके। जो नई भी अपकमिंग जो भी आईआईटीज आ रही है वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। प्रोफेसर वगैरह मतलब प्रोफेसर वगैरह हाई क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि बाहर जैसे में ट्रेंड है कि एक यूनिवर्सिटी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग पढ़ाने के लिए जाते हैं, ऐसे इंडिया में भी कल्चर लाया जाए। फॉरेन कंट्री से प्रोफेसर वगैरह इंडियन स्टूडेंट इंडियन यूनिवर्सिटी में आए, इंडिया में पढ़ाए। ये सब भी अगर ऐड कर पाए हम, ये भी अच्छा होगा बेनिफिशियल के लिए। तो मेरा कहना यही है कि हम लोगों का कि नंबर ऑफ आईटीज बढ़ाना अच्छा है, पर साथ साथ हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वर्क करना पड़ेगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके स्टूडेंट का, जो कि फर्दर इंडिया ग्रोथ में भी हेल्पफुल रहे।
थैंक यू सर। यस पंकज, आप बचे हो। हाँ सर, मेरा कंक्लूजन ये है कि हाँ, जैसे जैसे स्टूडेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं, सबको एक अच्छा एजुकेशन चाहिए होता है, तो नंबर ऑफ आईआईटी इंक्रीज हो, ये अच्छी बात है, बट साथ ही साथ हमें उसके क्वालिटी पे भी फोकस करना चाहिए। अगर क्वालिटी अगर बेटर नहीं रहेगा तो ज़्यादा आईआईटीज होने का कोई वो फायदा नहीं है। तो नंबर ऑफ आईआईटीज इंक्रीज के साथ हमें उसके क्वालिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। दैट्स फ्रॉम माय साइड। बस 2 ही पॉइंट है कंक्लूजन में आपके पास? डिस्कशन बहुत बड़ा हुआ है। हाँ सर, तो वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जो वहाँ से स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उनके उनके लिए हमें प्रॉपर वो चैनल बनाना पड़ेगा जो जिससे कि वो जॉब ले सके। अदरवाइज उनके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा फिर, या फिर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके वैसा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। Okay, so that was a great discussion, I would say. So do you need feedback or not? First of all, tell me that. Obviously. हाँ सर। Sandeep, sir. feedback. चाहिए ना feedback? Yes, sir. Yes, अक्षय sir. सुनी, हाँ सर। Mr. Akshay Yes, sir. Suni, how many Yes, times? sir. Yeah, how many times you have appeared for the interviews, PSU interviews? First of all, tell me that. So it is the first time It's first time. for the PhD. Means have you faced any of the interviews before or earlier? Yeah. Which? So it is the Reliance Energy. You have been passed out from IIT, na? So from which IIT you are? Sir, currently I am IIT BHU. Currently you are in IIT BHU, first year, second year? I am pass out. JRS. In when did you pass out? I'm pass out in the 2023. 2020 itself. Okay. 3. Yes. 2023 means this year you have been passed out, right? Okay. Yes. So अभी आपका क्या रैंक है अक्षय? और किस ब्रांच से आप? Sir, chemical. I'm from the chemical engineering. Okay, you are from chemical engineering. What's your rank? Gate rank? 362. 362. Do you Yes. want to get selected or not? You tell me that. Obviously, yes. General Why category? not? General category? No, sir. I am the OBC NCL. OBC NCL category. So do you think Yes. that you will be getting selected? Obviously, sir. Obviously. Yes. This is your overconfidence. First point. What's the more confidence? Note my points, okay? Then either you have Yes, sir. note my points, then follow it or don't follow it. That depends all on it, all on you, okay? सबसे पहले आपका एटीट्यूड लेवल जो है वो सर आंखों पे है, ठीक? दूसरा पॉइंट, आप पॉइंट जो बोल रहे हो वो गोल घुमा के बोल रहे हो। आईआईटी से आप पास आउट हो, आपको आईआईटी का टॉपिक दिया था तो आप एग्जैक्ट पॉइंट्स बोलना चाहिए था आपने, ठीक है? उसके बाद में आप और कॉन्फिडेंस हो, इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन के जवाब किए, ठीक? नेक्स्ट थिंग, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, ये अगर ये करोगे और हाँ ऐसा होगा, भाई मैं बता दे रहा हूँ, आप इगोइस्ट हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ सच। आपको बुरा लगता होगा तो बुरा लगे, नहीं लगता होगा तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? हमें सिलेक्ट करवाना है, सिलेक्शन करवाना है, जो असली फीडबैक है मैं दूंगा, भले आप मेरे को जाके गाली दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? That's not a point, Next. sir. हाँ, Reality is reality. That's not a हाँ. मतलब आप भले के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है बुरे के लिए बोलेंगे. हाँ. Do not repeat your points. I have observed that you have been repeating your points while you are giving the conclusion part. Yes, I see it in one or 2 point. हाँ, so do not repeat your point. आप point जो बोलोगे जब भी आप आओगे डिस्कशन में, एग्जैक्ट पॉइंट बोलिए। एटीट्यूड लेवल को आप कम करिएगा, एटीट्यूड लेवल अगर आप कम करोगे सिलेक्शन चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 26 वाले का भी आईओसीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ था, ऑल इंडिया रैंक 49 वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, ऑल इंडिया रैंक 92 का सिलेक्शन नहीं हुआ था आईओसीएल में, भले 350 वैकेंसी थी केमिकल में, ठीक है? और ईगोइस्ट लेवल थोड़ा सा कम करिएगा, बिकॉज ग्रुप डिस्कशन में आपका ये नहीं देखा जाता है कि आप कितना बोल रहे हैं, आपका पर्सनल रिलेशन, इंटरपर्सनल स्किल, बॉडी लैंग्वेज,
आपके कलीग्स के साथ आप कैसे रहोगे जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे, ये सब देखा जाता है। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आपको फॉलो करना है तो आप करिए, नहीं करना है मत करिएगा। कल आना होगा आइएगा, नहीं आना होगा मत आइएगा। ओके, फ्री है, नहीं सर, यूटिलाइज करना है यूटिलाइज Sir, करिए, can- कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, can इसलिए I- मैंने आपसे पूछा। Can I ask a question? यस प्लीज। Sir, like generally I have given many GDs. Like we friends are also discussing. Generally we are following one rule. Like some of like we are the 7 people. हम 7 लोग हैं मान लीजिए, और किसी ने like IIT के अपोज में बोला, तो जनरली ये होता है कि जीडी में फिर सभी को अपोज में जाना पड़ता है, ऐसा कुछ? ऐसा मैं कौन शुरू बता को दिया देखा आपको हूँ। कि ऐसा कौन बता दिया आपको नहीं, कि तो मैं मतलब बहुत से राउंड्स में मैं देखा हूँ, इसलिए मेरा डाउट था, इसलिए मैं आपसे पूछा। देखो, अगर कोई प्रोज बोल रहा है तो आपको कॉन्स बोलिए। अगर आपके पास में प्रोज ही अच्छे तो आप प्रोज पे कंटिन्यू करिए ना। क्यों आपको कॉन्स करना है? आपको मुझे ये बताइए, 3 मिनट में आप प्रोज कॉन्स दोनों ढूंढ लेंगे क्या? बताइए। इसीलिए आप पॉइंट्स रिपीट कर रहे थे। मैं जानता हूँ ना, आपने लिखा नहीं होगा पॉइंट्स। जब आपको सोचने के लिए समय दिया था, आपने पॉइंट सोचे नहीं, लिखे नहीं। आपने पहले मिनट में 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर में आपने शुरुआत कर दी थी इंट्रोडक्शन की। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, बोलने का आपका तरीका अच्छा है, बट अगर आप लिखेंगे ना, वो जो 3 मिनट दिए जाते हैं, अगर लिख के रखेंगे तो आप एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट पे बोलेंगे और सिलेक्शन भी लेकर आएंगे, अगर ये पॉइंट ध्यान रखते हो तो। नहीं तो I will फिर improve the points. हाँ, Whatever वरना you फिर say, you हाँ, can वरना see फिर the वही है in the कि next round. हाँ, नहीं तो मैं आपको बता, तो वरना वही हाल और होता अच्छा है। पाएंगे हाँ बोलिए। अगले राउंड में, आप और अच्छा इंप्रूवमेंट पाएंगे मुझ में। आपको ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा कहने ऑल का। द बेस्ट। Thank you for the suggestions. हम तो चाहते हैं कि मार्गदर्शन पे जो भी आए, जीडी में आए, जीटी में आए, पीआई में आए, सिलेक्शन लेकर जाए। हमारा 100% सिलेक्शन रेट कंटिन्यूड रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, श्योर। विजय, Thank you sir for the Yes, sir. suggestions. वेलकम। विजय, आपका Yes, sir. इंप्रूवमेंट दिख गया। चौथा जीडी आपका चौथी बार आप नहीं, आए हो sir. सेशन में। नहीं सर, सेकंड टाइम, दिस इज माय सेकंड टाइम। कल नहीं थे क्या आप? नो सर, टुडे अच्छा, ऑनवर्ड्स। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम विजय। तो इम्प्रूवमेंट दिखा। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, हिंदी जो नेचुरल है, नेचुरल पे वर्क करिए, बहुत अच्छा जाएंगे। ओके, थोड़ा सा डेविएट, आप टॉपिक से डेविएट हो रहे थे तो डेविएट नहीं होना है टॉपिक से। आइए पॉइंट टू पॉइंट पे आइए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है, इशू नहीं है। सिद्धांत, यू आर एब्सोल्यूट टू द पॉइंट टू पॉइंट एंड यू आर एक्यूरेट। ओके, अच्छा चल रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन वाला पार्ट आप बिल्कुल करिएगा। मुझे लगता है कि आपको पॉइंट्स मिलेंगे इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन वाले पार्ट में। ओके, ठीक है सर। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है तो, है ना? बाकी Yes, sir. दोनों इसमें अच्छे थे। पंकज आप वन हाँ, थिंग सर, एक चीज मुझे Yes. पूछना है सर। कभी कभी क्या होता है ना, टॉपिक नहीं आता होता। हाँ, हाँ, तो जीडी बीच का में टॉपिक आइए, उन्होंने दे दिया, हाँ, तो बीच में आके, बीच में बोलिए है ना। ना उसका। ठीक है। हाँ, बीच में आइए, बोलिए। अगर देखो कभी ऐसा टॉपिक जो आया जो आपको नहीं पता है, तो आप उसमें बीच में आइएगा। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमारे दिमाग में ना वो पॉइंट्स क्लिक नहीं करते, और आपको भी पता है वहां पे सब हौश पोश हो जाता है। एक तो हमारा जो बेचैनी होती है, बेचैनी बढ़ जाती है वहां पे जाकर, है ना? हार्ट बीट्स हमारी तेज हो जाती है जब आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर जाओगे, तो नहीं होता है हमसे स्टार्ट, नेचुरल है। तो आप बाद में आइए ना, और जो ठीक है सर। बंदे जब 4-5 बंदे बोल लेंगे तो उनसे पॉइंट कलेक्ट करिएगा, Yes, sir. कलेक्ट करके फिर अपने पॉइंट्स बोलिएगा। समझ गए? ठीक है सर। ओके, पंकज आप वेरी काम है, साइलेंट sir. है, एक्यूरेट अप टू द पॉइंट्स थे, बट थोड़ा इन्वॉल्वमेंट कम है, इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा लाना होगा। ओके सर। ओके, सर, एक ही मेरा बार first आने time से था, नहीं होता है। इसलिए ग्रुप डिस्कशन में कम से कम 2 या 3 बार आप आइए, 2 या 3 बार आप ग्रुप डिस्कशन में आइए, इन्वॉल्वमेंट लाइए, तो आपका हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बहुत अच्छा था, पॉइंट्स टू पॉइंट्स थे, काम हो, साइलेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके सर। हाँ, पर्सनल रिलेशनशिप वाला तो बढ़िया था। रिकेश, हाँ। मैं कितने बार बोलूं यार, आपको लो कॉन्फिडेंस है, आपको दिखाना नहीं है लो कॉन्फिडेंस। आप एक बार भी एक पॉइंट नहीं बोले, आपने कंक्लूजन में सीधा आ गए। और पंकज, आप कंक्लूजन में ना, बहुत सारे कंक्लूजन थे, कंक्लूजन में आपने 2 ही चीज बोली। हाँ सर, एक्चुअली मैं कंक्लूजन सर राइट डाउन नहीं कर रहा था। नोट डाउन तो मुझे करके उतने रखिए, पॉइंट्स नोट डाउन करिए। सर,
हाँ सर, मुझे उतने पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे, इसीलिए मैं सोचा कि मैं कंक्लूड नहीं करूंगा, इस वजह से इसीलिए मैंने सबका कंक्लूजन लिया। क्यों लिया? कितने लोग एक्टिव थे करके, ये देखने के लिए कौन किसकी बात सुन रहा हाँ था, सर। कौन किसकी नहीं सुन रहा था, मुझे पता था ना। ठीक है ओके सर, ओके सर, आगे से लिखिए तुरंत। सर। नाइस परफॉर्मेंस, आप में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नाइस परफॉर्मेंस है आपका, चलने दीजिए, ऐसा करोगे तो हो जाएगा। और रिकेश आप भाई हाँ। बोलिए, बोलना है तभी निकलेगा, नहीं बोलोगे तो नहीं निकलेगा। हाँ सर, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मतलब 2-3 लोगों के बाद बोला था, 1 पॉइंट। देखो 2 आप पॉइंट काम हो, ओके। अब देखो आप, हाँ। पंकज भी आपके जैसे काम है, ठीक है, बट उन्होंने बोला ना, हाँ। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपने पॉइंट्स हाँ। सही समय पे सही समय पे उन्होंने अपने पॉइंट्स बोले, तो आपने भी जी। उस सही समय पे पॉइंट्स बोलना चाहिए था, बराबर है। जी। बट मुझे वो हाँ लैग लगा आपके इसमें। हाँ, ठीक है, वर्किंग करेंगे। हाँ। ओके। और कुछ पॉइंट्स और ऐड कर सकते थे, जैसे इंक्यूबेशन है। अगर आपने इन्होंने बोल दिया, अक्षय ने, कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सीट्स ऑफ आईआईटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन आर&डी सेक्टर। और एक पॉइंट इन्होंने बोला कि आगे चल के फ्यूचर में आईआईटी मंडी भी आईआईएससी बंगलोर को कंपेयर एक टक्कर दे सकता है। ठीक है, वो बात की बात है। तो ऐसे और भी पॉइंट्स आ सकते थे, जैसे इंक्यूबेशन होता है, स्टार्टअप्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर फ्रॉम आईआईटीज ओनली, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़िया बनेगा। पीएचडी है, पीएचडी में रिसर्च वर्क और अच्छा होगा। आईआईटी हैदराबाद का सिद्धांत ने कहा था कि आईआईटी हैदराबाद में ऐसा नहीं कि मशीनरीज नहीं है, मशीनरीज सारे आईआईटीज में होती है, कुछ आईआईटीज में नहीं होगी, कुछ आईआईटीज में है, बट दे आर वेल इक्विप्ड। आईआईटीज के अगर मैं बात करूं तो आईआईटीज में, अगर आप भी जानते हैं कि इंडस्ट्रीज के साथ में वो लोग अपना जो भी रिसर्च होता है वो इंडस्ट्रीज के साथ में करवाते हैं, है ना। तो और भी अच्छा रिसर्च होगा, और भी अच्छे सॉल्यूशंस निकलेंगे वहां से। यस विजय, यस सुरेंद्र, प्लीज इफ एनी डाउट्स और क्वेश्चंस प्लीज मेंशन। सर आप मेरे को नेगेटिव पॉइंट बता दी सर, एक बार मेरे नेगेटिव पॉइंट सर, ऑन व्हिच आई नीड टू वर्क अपॉन। आप में ना, देखो आप जो पॉइंट्स बोल रहे थे, पॉइंट्स बिल्कुल बोल रहे थे, सिर्फ मेरे को एक जो नेगेटिव पॉइंट्स लगा वो था कि डेविएशन फ्रॉम द टॉपिक। ठीक है सर। ओके। और हाँ जब सर। आप पॉइंट्स बोल रहे थे ना, मैं कहूंगा कि आप एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट पे आके बात करिएगा, आपका इम्पैक्ट पड़ेगा और नेचुरल रहेंगे। हिंदी बोलने की अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता है, अटकते हो, जरूरत नहीं है इंग्लिश बोलने की, जितना आप हिंदी ओके बोलेंगे सर। चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे सर ग्रुप मिक्स कर डिस्कशन सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, कोई इशू नहीं है भाई, मेरे बाइलिंगुअल में कोई इशू नहीं है। सर मेरा सर डाउट था, या बोलिए। विजय। हेलो सर, मैं एक बोलता सर, जैसे स्टार्टिंग में कोई इंट्रो देता है सर, इंट्रो में इन्होंने अगर वो कीवर्ड्स वगैरह बोल दिए सर, जिससे कि मैं फर्दर मतलब एलोबरेट करके बात डिस्कशन बोल सकता था सर, फिर मैं क्या बोलूंगा फिर सर, अगर स्टार्टिंग में कैसे इंट्रो में ही कीवर्ड वगैरह सब बोल दिए, फिर सर मैं ब्लैंक हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होना है। तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में थोड़ा सा आपको रुक जाना है, ठीक है। ऐसे केस में मान लीजिए आपके जो पॉइंट्स थे वो सपोज सिद्धांत ने इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया, है ना, और ठीक है आपके सर। वो पॉइंट्स हाँ आपके चले गए, बिकॉज एक नेचुरल है कि सभी लोगों को कॉमन बातें याद होती है, कॉमन बातें कोई भी बोल देगा, बट कुछ पॉइंट्स आपके छूट जाते हैं। तो आप जब कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो दूसरे व्यक्ति के पॉइंट्स को लेकर एलोंगेट करना, या फिर आप उसके अगेंस्ट में आ जाना ना, अगेंस्ट में आ सर जाना। सर रिपीटेशन नहीं होगा, जैसे आपने बोला कि मैं किसी और के पॉइंट को मतलब बोरो करके, सर वो रिपीटेशन नहीं होगा सर? एलोंगेशन की बात कर रहा हूँ मैं, रिपीटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा नहीं सर, उनके ही पॉइंट को मैं इलोबरेट कर दूं, मैं चलेगा? हाँ, एलोंगेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम उस ठीक है सर। ऐसा भी बोल सकते हो कि ये सिद्धांत मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपका सहयोग कर, ये पॉइंट से मैं आपके सहयोग हूँ, बिल्कुल इस पॉइंट ठीक में है मैं सर। आपके सहयोग में हूँ, ठीक है है सर। ना, समझ गए। आई एग्री टू द हाँ सर। पॉइंट, ऐसा भी बोल सकते हो, आई एग्री टू द पॉइंट दैट दिस एंड दिस पॉइंट इज वेरी ट्रू, एंड इसके आगे हम और एलोंगेट करते हैं करके। हाँ सर, आई वुड ठीक लाइक है, टू ऐड सम मोर पॉइंट टू इट। यस आई वुड लाइक टू ऐड सम मोर पॉइंट्स। ओके सर। सर एक और डाउट है सर मेरा। हाँ सर जैसे ही जब डिस्कशन स्टार्ट होता है तो सर पता नहीं क्यों मैं इंग्लिश, वैसे मैं ही नहीं बोल रहा सर, मैं बहुत फ्लुएंट हूँ इंग्लिश में, पर मैं इंग्लिश में बोल लेता हूँ, पर ग्रुप डिस्कशन मेरी इंग्लिश निकलती नहीं है सर, पता नहीं क्यों। हाँ, तो वो
आप जब भी मेरे को समझ में आ गया था, जब आप पहला वो जब भी जो दे रहे थे, अब वो पहला दे रहे थे, आज का अभी दूसरा था, तो दूसरे में आप कंफर्टेबल लगे मुझे। ओके, कोई इश्यू नहीं है, हो जाएगा। इसीलिए तो मॉक करवाए जाते हैं यार, मॉक जेडी, मॉक पीआई, इसीलिए तो करवाए जाते हैं ताकि आप यहीं पे कंफर्टेबल हो जाए। जब आप आगे जाओगे तो वहां पे कंफर्टेबल फील करोगे करके, है ना। इसीलिए टेस्ट सीरीज, आप लोग टेस्ट सीरीज क्यों देते हैं? ताकि आप लोगों को एक रियल इंटरफेस मिल जाए। जब आप गेट का पेपर, हाँ गेट का पेपर देते हो तो इसके पहले टेस्ट सीरीज लगाते हो, तो टेस्ट सीरीज लगाने का फायदा वही होता है कि आपको मॉक मिल जाए करके, है ना। और सर एक और लास्ट डाउट सर मेरा, बोलो। सर जैसे कि मेरे जैसे कि मेरे को लो स्कोर, जैसे मेरे को भी शॉर्टलिस्ट किया है, पर मेरा सर गेट स्कोर उतना अच्छा नहीं, गेट मार्क्स कितना है है ना सर? सर मेरा 54 मार्क्स है गेट मार्क्स। मैकेनिकल? हाँ सर। रैंक कितनी बन रही है आपकी? सर 1006। 1006? कैटेगरी जनरल? EWS। अरे यार चांस है भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। सर मैं कहने का मतलब ये था सर मेरे को, क्योंकि सर 15 मार्क्स का ग्रुप डिस्कशन को 15 में कंबाइन से करके। भाई मेरे हाँ सर। 13 नंबर भी ले आओ, आप 13 में 15 ले आओ, मैं बता दे रहा सिलेक्शन आपका कंफर्म है। 13 नंबर तो ले आओ। अच्छा सर पता है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, कोई बोला कि 13 मार्क्स तो रेयरली मिलते हैं किसी को। कौन, किसको मिलते सर 13 मार्क्स? किसको सर मिलते 13 मार्क्स? सर इस साल सर किसी की गेट में रैंक 7th आई है ना, मैकेनिकल से ही सर। ऑल इंडिया रैंक उनकी मैं 7? हाँ 7 आई है। उनकी मैं वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि रेयरली होता है ऐसे में किसी को एक मिनट, मार्क्स। लास्ट ईयर कौन सा वीडियो उन्होंने बना दिया क्या अभी वो फेस किए? ऑल इंडिया रैंक 7, क्या नाम है, नाम बताइएगा। सर ऋषि अजय। कालिया है सर। ऋषि हाँ? का नहीं, ऋषि अच्छा कार्य ऋषि कालिया है, काले, ऋषि हाँ कालिया। हाँ, आगे आ गया, ऋषि काले की बात कर रहे हो, इसरो साइंटिस्ट। सर मैं ठीक है। हाँ इसरो साइंटिस्ट, हाँ इसरो निकला सर इस साल का